विगत 3 माह से छत्तीसगढ़ में मसीहियों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए भीम आर्मी ने अपना पूरा सहयोग मसीहियों के लिए समर्पित किया है। भीम आर्मी और मसीहियों के हितों को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय हाईकमांड ने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया और अपनी सभी इकाइयों को भंग कर दिया है, जिसका पुनर्गठन 15 अक्टूबर तक संभावित है। भीम आर्मी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र कुर्रे जी और भीम आर्मी के बस्तर संभाग प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष निराला जी ने छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी से मुलाकात की और समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ साथ भविष्य की रणनीतियों पर भी विचार किया। इसके अलावा मौजूदा राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दों पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୀମ ଆର୍ମି ଦଳ ଏବଂ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବୈଠକ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ବୈଠକ ରଖାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେପରିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୋତେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଭିତରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ସଭାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଭୀମ ଆର୍ମି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେଇଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି କିଏ? ଭୀମ ଆର୍ମି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଭୀମ ଆର୍ମିକୁ। ଆଉ ଯଦି ଭୀମ ଆର୍ମିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ, କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ଆର୍ମିକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି? ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୀମ ଆର୍ମି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭୀମ ଆର୍ମି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିଜର ତାକତ ବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀମ ଆର୍ମିର ସଦସ୍ୟମାନେ, ସେମିତି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ଆପଣ କେବେ କରିବେ କେବେ ନ କରିବେ, କି ସମ୍ବିଧାନ ପଢ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। धन्यवाद। आज भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे बहुत सीनियर और बहुत आदरणीय वीरेंद्र जी आज हमारे अहोभाग्य है कि आप हमारे ऑफिस में आए। हम बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं क्रिश्चियन फोरम की तरफ से, और बहुत अच्छा लगा कि आप आए।
और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में जो मसीही समाज और आपका भीम आर्मी है, इनका समन्वय कैसे बनाना, कैसे काम करना, इस पर काफ़ी चर्चा होती रहती है। और अभी तो बहुत मुश्किल कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमको मिलता रहा है। इस वक्त ख़ासतौर से मैं जो बात करना चाह रहा हूँ हमारे वीरेंद्र जी से, प्रवक्ता भी हैं, कि वीरेंद्र जी आपने देखा होगा कि अभी आदरणीय हमारे सीजीआई साहब जो थे, उनके ऊपर एक जूता फेंका गया जी उस, है ना। और अब दूसरी बात जो मैं कहता हूं, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी के ऊपर भी बहुत ट्रोलिंग की गई है। तो ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हैं, आपके समाज की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से? देखिए क्या है, ये जो अभी वर्तमान जो सरकार है जी, ये तो हिंदूवादी संगठन है और पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र में तो फिर ये है कि वर्ण व्यवस्था लागू करना पड़ता है और वर्ण के हिसाब से सबसे ऊपर में रहेंगे जो ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जो शूद्र है वो हर तरह से उनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, निचले पायदान पे रखा जाएगा, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो जाए, फिर भी उसको शूद्र की दृष्टि से ही, मतलब नीच दृष्टि से ही देखा जाए। उसी का ही उदाहरण जो हमारे सामने आ रहा है कि जो सीजीआई हैं साहब, इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंचने के बावजूद भी उनके ऊपर जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनको तकलीफ होता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जूता फेंका गया। इसी तरह का चीजें जो है कई बार हमारे समाज से कोई राष्ट्रपति बन रहा है शूद्र समाज से तो भी वही हाल हो रहा है, कोई प्रधानमंत्री भी धोखे से भी अगर बन जाएगा तो उनके ऊपर भी वही होता है। बाबू जगजीवन राम के ऊपर भी इसी तरह की घटनाएं घटा था कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी हैं, इतने बड़े शख्सियत को आज भी उनको अपमानित किया जाता है। तो ये वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उन लोग अपना काम कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र में यही चीज होता है। इसको हम सबको समझने की जरूरत है। कितना भी बड़े पद में पहुंच जाए फिर भी उनका अपमान झेलना ही पड़ेगा। तो उसी का एक उदाहरण है जो अभी वर्तमान में घटना घटा है। इसके बारे में कैसा आपकी प्रतिक्रिया है, क्या करना चाहिए हम लोगों भी? और इसमें ये भी मैं बोल दूं तो हमारा जो क्रिश्चियन समाज है, ये सब डेवलपमेंट्स को देख के ना बहुत उद्वेलित है। मतलब हम लोग घबरा रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। और गवाई साहब को मारना, मैं किसी व्यक्ति को मारा जूता नहीं मानता हूँ, इसको मानता सर्वोच्च संस्था जो है, संवैधानिक संस्था जो इससे ऊपर कोई नहीं है, उसमें जूता फेंकना मतलब हमारे संविधान पे जूता फेंका गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। उनका तो सोच ही वही है ना कि ये मनोवादी मानसिकता में कि हम कितना भी बड़े ऊपर हो जाए, हम उनके नज़र में नीचे ही रहेंगे और फ्री में ही सेवा देते रहेंगे। हाँ, इस तरह की चीजें, घटनाओं को रोकने के लिए जो शूद्र समाज से है, मतलब जो SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक जिसमें ईसाई हैं, मुसलमान है, सिख है, जैन है, बौद्धिस्ट, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, ये सब शूद्र में आते हैं। तो शूद्र जितने भी हैं, इन सबका भी इकट्ठा होने का समय आ चुका है। अपने कुछ मजबूरियों को छोड़ दिया जाए और सबको मिल के एकजुट होके ऐसी मानसिकता का मुकाबला करें और इस देश में भी और प्रदेश में भी खुद अपनी राजपाट शासन सत्ता स्थापित करें, तभी इसका समस्या का समाधान होगा। यही हम लोगों का भी मानना है। हमारा बिल्कुल ये मानना है कि अब समय आ गया है कि हम लोग धर्म वर्म कर्म ये सब से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा करें और सब इकट्ठे रहें। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपका, आज आप हमारे ऑफिस में आए और हमसे बातचीत किए और आपने ये पॉडकास्ट में भी लिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस किस्म से हम लोग थोड़ा समन्वय बनाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी जय भीम, जय मसीह, जय सबको जय।